Good morning, my dear children, 10th class children. I am going to do the third sum before you. This combination of solids. Exercise 13.2, as you can visible in on your blackboard. Exercise 13.2, class 10 maths. Question number 3. Today I will start question number 3. That is, you can consult page number 248. So why you are waiting for? You just take out your notebooks and start doing sum with me. And this is on page number 248. Go to page number 248 and look there at question 3. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. This is a problem. A problem aane ke baad you have to think upon it. You have to first draw the figure. You know the figure, you should draw the figure of a gulab jamun. I have drawn there. This is a capsule shaped gulab jamun. तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, there are two hemispheres are attached to a cylinder. You can see their dimensions are mentioned here. So dimension, you can see the whole length of from A to B, length of the whole capsule is 5 cm. Okay, and diameter, or you can say radius, 1.4, half of diameter, that means half of 2.8, that is your 1.4 cm is the this is 2.8 cm diameter, and 1.4 cm is the radius of both the cylindrical portion and the hemispherical portion. You can see 1.4 cm, 1.4 cm, this is 1.4 cm. So you can subtract 5 cm from 1.4 plus 1.4, that means 2.8. So subtract 2.8 cm from 5 cm, you get 2.2 cm. This is the length of the or height of the cylindrical portion. So it is clear to you, the figure should be made correctly. Then you can proceed. This is a capsule shaped gulab jamun. 2.2 cm is the length of the cylindrical portion, and 1.4 is the radius of both cylindrical and hemispherical portions. So now we'll do like this. See this, you can find out the first chalk out a plan. First you have to find out the volume of the capsule your gulab jamun. Then after finding out volume, you can multiply it by 45, then you will get the volume of the 45 gulab jamuns. So this question is quite simple. Now you can proceed like this. Look here you start like this. Thank you. You start like this. Volume of one hemispherical portion. देखिए 3 टुकड़ों में है, एक टुकड़ा ऊपर है, एक टुकड़ा नीचे है, इरेगुलर फिगर है. यू कैन नो द फॉर्मूला, आप निकाल सकते हो. एक हेमिस्फीयर का निकालिए, इसका डबल कीजिए, वॉल्यूम निकल जाएगा दोनों का. फिर उसके अंदर ऐड कर देंगे सिलिंड्रिकल पोर्शन का, तो आपको पूरा सॉलिड फिगर का यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर. तो ऐसे मैं करने जा रहा हूँ. वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेरिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेरिकल पोर्शन यू नो हेमिस्फेरिकल पोर्शन अच्छी तरह आपको पता है 2/3 हो जाता है, 2/3 पाई r क्यूब. ओके, बट यू नीड नॉट डू द कैलकुलेशन ऑल टुगेदर, जस्ट reserve the calculation for other next few steps.
you will do the whole calculation. 2/3 pi, r is here 1.4, that means 1.4 into 1.4, 1.4 is appearing thrice, 3 बार 1.4 आ रहा है, लेकिन ऐसा एक नहीं है, हमारे पास एक ऊपर एक नीचे है. वी हैव गॉट 2 हेमिस्फेरिकल पोर्शन, तो ये भी वॉल्यूम ऐड हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पोर्शंस, तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू 2, दैट मीन्स 4/3. 2/3 मल्टीप्लाई डबल 4/3, 4/3 पाई इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4. ये कई स्टेप के बाद हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, हम यहीं छोड़ देते इसको और पीछे हम इसमें लिख देते सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ तक हमारा हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ये आप कर सकते हैं ऐसे. तो ये आपका हो गया 4/3 हो गया, ये 4/3 पाई इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट आपको वॉल्यूम ऑफ द, ये एक सिंगल सिलिंड्रिकल पोर्शन है, वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन. आपको फॉर्मूला मालूम है, सिलिंड्रिकल स्पेलिंग DE हट जाता है, आर आ जाता है. सिलिंड्रिकल पोर्शन ये मिडल में है, इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला πr²h. ये आपको रट गया होगा करते करते, अब रट जाएगा. πr²h, पाई तो पाई रखिए, देखिए बाद में बड़ा फायदा मिलता है, लास्ट में कैलकुलेशन कट पिट जाते हैं और कॉमन निकल जाते हैं. πr², r इज अगेन 1.4, 1.4 दो बार, h is your 2.8. this is the height of the length of the cylindrical portion. so write here 2.2. okay, this multiply 2.2. तो इन दोनों को हम ऐड करके हमें फुल आप इसका निकाल लेंगे. we will get the volume of the combination मिल जाएगा हमें उसका. you will get the combined volume, you will get the combined volume of this. So now I am doing this, I am this wiping it out. Hope you have understood. I will proceed further by add. I will add the 2. okay, volume of the, you can write here total volume or volume of the gulab jamun. एक volume of 1 gulab jamun, you can write 1 gulab jamun. if you add them, ये कैप्सूल का आपको मिल जाएगा, तो बड़े आराम से ऐड कर सकते हैं, फिर कॉमन भी निकाल सकते हैं. तो यू ऐड लाइक दिस 2.3, ओके, एंड इट बिकम्स 4/3. you can write here 4/3 because this is 2 hemispheres are there, become a full sphere. so 4/3 into pi, thrice करिए 1.4, 1.4 and again 1.4. ये इसमें प्लस हो जाएगा सिलिंड्रिकल पोर्शन, जो कि यू हैव फाइंड आउट इट्स पाई 2.2 हियर. आप पहले लगाइए 2.2 को, ये आपका ये है 2.2, दिस योर कांस्टेंट फिगर, इसको पहले लगाया जाता है, फिर पाई, फिर अगेन ये आपका फिगर आ गया 1.4 इंटू 1. ये बाद में करेंगे हम, बहुत जल्दी मत करिए, इससे आपका क्या, आप कॉमन लेने में फायदा हो जाएगा और कैलकुलेशन विल बिकम सिंपल. तो यहाँ पर बड़े आराम से कॉमन लेने की प्रैक्टिस होनी चाहिए. यू मस्ट नो हाउ टू टेक आउट कॉमन. तो आप पता है कॉमन जब दोनों में होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पाई दोनों में कॉमन है, तो पाई को बाहर निकालिए, लेकिन आप पाई के साथ साथ पहले कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालिए. 2-3 यहाँ दिख रहे हैं, 1.4, 2 वहाँ दिख रहे हैं, तो जो कम से कम है उसको बाहर निकालना पड़ता है. तो 2 निकाल लीजिए, पाई निकालिए और 1.4 इंटू 1.4 कीजिए. तो आप समझ गए किससे करते हैं, 1.4 इंटू, इससे कैलकुलेशन ईजी पड़ता है, टाइम बचता है, क्योंकि बोर्ड में हमारे पास टाइम इतना नहीं रहता है,
करने लगे सबको पूरा तक तो उसमें बहुत टाइम लगता है। ये हो गया पाई इंटू 1.4 इंटू 1.4। और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, पाई तो निकाल लिया, ब्रैकेट में आपका बच जाएगा यहाँ से 4/3 बचेगा। यू विल गेट 4/3 फ्रॉम हेयर एंड इंटू 1.4 फ्रॉम हियर। इस पोर्शन में से 1.4 भी रह गया, मल्टीप्लाई इस पोर्शन में क्या रहा आपका, इस पोर्शन में आपका पाई चला गया, 2.2 बच गया। यू विल गेट 2.2, इस पोर्शन में 2.2 रह गया। तो यू कैन राइट। तो आपको ये अच्छी तरह से आपको आना चाहिए, क्योंकि बीइंग इन 10th क्लास you must know to operate this type of taking common and like this। तो आपका स्मार्ट हो जाता है मेथड। देन यू कैन डू लाइक दिस। अब इसको खोल लीजिए, वहाँ कटने वाला है, आप देख सकते हैं आराम से। तो 1.4 यहाँ आपको ब्रैकेट को पहले बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट को पहले हमें करना पड़ता है। 4 पॉइंट तो ये 5.6 हो गया अपॉन 3 प्लस 2.2, ये आपका हो गया 5.6 अपॉन 2 प्लस 2.2। तो यू आर गेटिंग लाइक दिस। फिर हम इसको अपॉन 1 करके, क्योंकि आपका वो है तो इसको ले लेंगे। तो अब ये हमारा हो गया। तो लाइक दिस हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये 1 का हो गया, 1 गुलाब जामुन बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर करिए 22.7 को ये कट जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 0.2 कट गया, 0.2 लिख सकते हैं। 0.2 की जगह 0.2 लिखने का रिवाज है, तो वो लिखिए इंटू 1.4। विद इन ब्रैकेट लाइज 5.6 अपॉन 3 प्लस 2.2 अपॉन 1, 22, then 0.2 into 1.4, 3 1 LCM 3, 5.6 plus 3 into 2.2, 6.6। यू कैन लाइक दिस। तो आपको धीरे धीरे सिंप्लीफाई हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो हम आगे बढ़ेंगे। ये आएगा, अभी 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। तो आपका देख लिया वो कट गया, तो इसको हम 22 इंटू 2/10, 0.2 को आप बना लीजिए डेसिमल, इसमें फ्रैक्शन में 14/10 ये भी कर सकते हैं। और यहाँ हम क्या करेंगे, 5.6 और 6.6 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपका। फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 12.2, 5.6 प्लस 12.2 अपॉन 3, 12.2 अपॉन 3। ये सारा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम एक और करेंगे हम काम, इसको 30 कर लो, इसको भी आप फ्रैक्शन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़े हैं दोबारा। ये आपका वॉल्यूम आया 1 गुलाब जामुन का, इसके अंदर शुगर सिरप को हम हिंदी में चाशनी बोलते हैं। चीनी का जो घोल होता है 30% उसमें रहता है। ये दिया है आपको, यू गो थ्रू द सम प्रॉब्लम जो सेक्शन देखिए उसमें दिया 30%। इसका 30 चाशनी का वॉल्यूम निकालना, कितनी चाशनी आती है 45 गुलाब जामुन में, इसका 30% करेंगे। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, शुगर सिरप मीन्स चाशनी, शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, इसका 30%। दैट मीन्स इसका 30% कर लीजिए। 30 इंटू 100 इंटू ये पूरा 22 इंटू 28/100 भी कर सकते हैं। इसको ऐड मल्टीप्लाई करिए 28/100 ऊपर 122,
और नीचे जो 30 है ये 30 आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया कैंसिल आउट। तो धीरे धीरे करके और छोटा हो गया, तो आपका ये हो गया आपका। थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं, सिंप्लीफाई लिख लेते हैं, लिखेंगे करेंगे नहीं अभी। 22 इंटू 28 इंटू 122, ये हम ऊपर ले जाते हैं और 30 कट गया है और नीचे 1 के नीचे यू विल गेट 4 zeros, तो 1 2 3 4। लेकिन ऐसे हमें एक का नहीं 45 का निकालना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 40, तो यू विल गेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम ऑफ चाशनी ऑक्यूपाइड बाय 45 गुलाब जामुन। तो आप इसको मिटा के हम करते हैं इसको, बस 45 से मल्टीप्लाई करके विल गेट द आंसर। दिस विल अप्रॉक्सीमेट आंसर, तो पॉइंट बहुत आ जाएंगे। तो लास्ट में कैलकुलेशन होगी हमारी। तो अभी तक कुछ ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स, ये आपका हो गया 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। 45 इंटू 22 इंटू 28 इंटू 122 इंटू 1 फॉलोड बाई 4 zeros। ये सब आप करेंगे, करने के बाद आप देखेंगे 45 इंटू 22 इंटू 28 इंटू 122 अपॉन 10,000, you will get answer, this answer 338.184 हाँ 0.184। अब आप करेंगे इसके पीछे सेंटीमीटर क्यूब, इसको सीसी भी बोलते हैं, जिसे एमएल भी कहते हैं, सीसी या एमएल। तो लिक्विड को हम सीसी या एमएल में नापते हैं, सेंटीमीटर क्यूब मतलब सीसी। तो 3 ई अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट बहुत छोटी मात्रा से कैंसिल कर दीजिए, तो अप्रोक्सीमेट आंसर मात्रा ये आपका आप मिला लीजिए, यही आंसर होगा। 338 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करेगा। हाफ लीटर से थोड़ा कम होता है, 500 सीसी होता है आपका, 500 ml हाफ लीटर, लेकिन थोड़ा कम 338 करेगा। नाउ आई विल राइट द सेकंड क्वेश्चन बिफोर यू। नाउ रीड द सेकंड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ, पेन स्टैंड मीन्स कलमदान, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, वो लकड़ी का बना हुआ है, इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइडल शेप है, लेकिन जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, हाइट है 3.5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज इट्स ब्रेड्थ। एल है 15, बी है ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर, एच है 3.5 हाइट है। लेकिन हम उसको दिखाएंगे नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, खाली मैं हाइट और लेंथ दिखा रहा हूँ, उधर दिखाना पड़ेगा और मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाए, दिखाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ पे, लेकिन वॉल्यूम लगाते हुए तो कंसिडर करेंगे। तो द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, डिप्रेशन गड्ढा है, डिप्रेशन गड्ढा है, 4 गड्ढे करेंगे आप पेन रखने के लिए। पेन को उल्टा रखा जाता है, पेन स्टैंड के अंदर पेन को उल्टा रख के ऐसे, जैसे ये मेरा पेन है, ऊपर उसका कैप होता है, नीचे पेन को रखा जाता है इस तरह से, इसे फंसा के, तो पेन गिरता नहीं है, इस तरह का है कुछ। तो ये ऐसे पेन उल्टा रखा जाता है, ऐसे ऐसे 4 है। तो ये पक्की बात है, लकड़ी का हमें निकालना है। लास्ट में देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। देखिए यहाँ पे वुड का निकालना, वुड तो निकल गया 4 पोर्शन से, यहाँ तो वुड है ही नहीं, तो माइनस करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है वैसे, हमें पूरा एंटायर का, जैसे क्यूबॉइड का आपको फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम का LBH होता है, उसमें से हम 1 का 4 कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे, 1 ये आपका कोन का, तो आपका निकल जाएगा वुड का, माइनस करना पड़ेगा 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन। इस ढंग से आप यू कैन डू दिस क्वेश्चन। तो मैं आपको फटाफट कर रहा हूँ, तो ये आप कर सकते हैं ऐसे। तो आप फटाफट लिखिए सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम, दिस यू राइट, वॉल्यूम ऑफ वुड
इन द एंटायर स्टैंड, जो कि हमें निकालना है। इन द एंटायर स्टैंड कैसे मिलेगा? एंटायर स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुड, नहीं, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, जो कि खुद वुड का बना है, ऑफ द क्यूबॉइड, माइनस 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ वन कोनिकल डिप्रेशन। गड्ढा जो है, डिप्रेशन मीन्स गड्ढा, डिप्रेशन का ऑपोजिट है एलिवेशन, याद रखिए। मैं इंग्लिश में करा रहा हूँ आपको। द ऑपोजिट ऑफ डिप्रेशन एलिवेशन, ELEVATION। तो 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ 4 इंटू वॉल्यूम 1 कोन, दिस विल बी आपका हो जाएगा। लेकिन इसको आप करना थोड़ा जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालिए और फटाफट करिए। 15 इंटू लेंथ, ये हो गया आपका ब्रेड्थ 10 है, इंटू 3.5। इसको हम करेंगे तो इसका आ जाएगा आपको, फटाफट आप कर भी सकते हो इसको, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप कैलकुलेशन भी इजी है, क्योंकि उसमें पाई वगैरह नहीं है, इजी पड़ता है। इसका आ जाएगा आपका 525 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन वेरी इजी। तो 3.5 का 10 करते कट जाएगा, 35 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 35 15 का 525 आएगा। एक तो ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं, एक इसका वॉल्यूम निकालते हैं, एक डिप्रेशन का वॉल्यूम ऑफ 1 डिप्रेशन, देन 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करके हम आंसर ले लेंगे, विल गेट द आंसर, डायरेक्ट आंसर। वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल, वॉल्यूम ऑफ 1 कोनिकल डिप्रेशन, जहाँ पे वुड था यहाँ से वुड हट गया, डिप्रेशन में वुड नहीं है। वॉल्यूम ऑफ 1 कोनिकल डिप्रेशन, तो बहुत अच्छी तरह से जानते कौन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। 1.3 बहुत बार कर चुका, आपको अपने आप रट जाता है। 1/3 पाई r² h, ये होता है आपको। तो आपको पता है, सब पता है, r भी पता है, h भी पता है। तो आप यहाँ लिखिए आगे 1/3 22/7. How much is r? Here you can see this 0.5. That means 5/10 स्क्वायर है, ट्वाइस 2 बार लिखिए, इंटू h। h बढ़िया आपका, क्योंकि कटने वाला h दिया है 1.4। तो बड़ा आराम से ऐसे देते हैं लोग, आराम हो जाता है, कटपिट इजी पड़ जाता है। 1.4 और 7 से सीधा कटने वाला है, 14/10। बड़ा आराम से देख सकते हैं, 7 से 7 यहाँ 2 आ गया, 2 से यहाँ 10 गया, 5 आ गया, 5 से 1 गया, एक 5 है। तो ये आपका हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो आपका, लेकिन ये ऐसे 4 है, वॉल्यूम ऑफ 4 स्टैंड करना है। तो ये आपका का यहाँ पे आपका हो गया ये आपका ऐसे देखेंगे ना, ऐसे आपका 22 इंटू 5, 22 मल्टीप्लाई 5 इंटू, आप देखेंगे यहाँ पे 300। जब 0 फिगर है तो काटते नहीं है, मैं काट भी सकता हूँ, लेकिन काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैंने नहीं काटा, 300 ये आएगा। 22 इंटू 5/300 काट भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका 4 इसमें से माइनस करना है, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन। तो ऐसा में 4 यहाँ से वुड नहीं है, तो वुड का कंट्रीब्यूशन नहीं है स्टैंड में। तो 4 इंटू 110/300। तो आप देख सकते हैं 0 कट गया, यहाँ पे आपका ये भी कट गया, 2 से 15, 22/15। तो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया 1.467। अगर आप करेंगे 1.467 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसमें से आप माइनस कर लीजिए,
निकालने के लिए 525 जो है तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, वुड इन द एंटायर स्टैंड। जो पहला आया था क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो पूरी लकड़ी की थी एंटायर स्टैंड, उसमें थोड़ा खुले चले गया डिप्रेशन द एंटायर स्टैंड। ये आपका यू नो दैट यू हैव कैलकुलेटेड प्रीवियसली 525 आया था माइनस 1.467, तो यू विल गेट 523.533 533। दिस इज योर सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ये आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा कम हो गया 4 डिप्रेशन वजह से, थोड़ा सा लकड़ी वहाँ से निकाला गया। तो वी हैव कम टू द एंड ऑफ बोथ chapter as well as class. Okay, goodbye and have a nice day.